Hello, class 10 students. Today we are going to do the first poem of First Flight, Dust of Snow by Robert Frost. The poem Dust of Snow by Robert Frost is a simple and short poem with a deep and large meaning. ये बहुत ही छोटी सिंपल सी 8 लाइन्स की पोम है जिसमें 2 स्टैंजाज हैं. But in this poem, poet explains that how an act, a small act, impacts on a daily routine. एक कोई छोटी सी बात या कोई छोटी सी हैपनिंग हमारे मूड पर, हमारे डे पर, हमारे एक्टिविटीज़ पर कितना ज़्यादा असर डालती है. तो we'll see that एक स्नो ऑफ डस्ट ऑफ स्नो जो है, स्नो एक किसी के बॉडी पर गिरती है और कैसे उस पर्सन का मूड इसमें चेंज हो जाता है. लेट्स रीड द पोम फर्स्ट. द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Yes, let's talk about this dust of snow. What is this dust of snow? Dust of snow are small particles, the tiny particles of snow. These particles are so small that poet is referring as dust. ये इतने छोटे से particles हैं कि poet ने यहाँ पर dust का word use किया है. Okay, and now let's see the first para. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. ये 2 words जो crow है and hemlock tree पोइट ने जो यूज़ किए हैं आपने ध्यान दिया. ये जो क्रो है इसको बहुत ही ज़्यादा अशुभ मानते हैं. नो पोएट एवर यूजेस क्रो इन हिज पोम. कभी भी कोई पोएट अपनी पोम में क्रो को नहीं यूज़ करता. They talk about sparrow, nightingale, peacock, okay? But crow को हमेशा negative reference के लिए use किया जाता है. In a similar way, hemlock tree. Hemlock tree को एक poisonous tree है, okay? And this also gives out negative reference. Fine? तो क्रो ने ये क्रो एंड हेमलॉक ट्री जो है दोनों ही यहाँ पर सौरों को डिनोट कर रहे हैं. ओके, सो लेट्स सी द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी. शुक मीन्स शेक करना. ओके, किस जिस तरीके से एक क्रो ने मुझ पर डस्ट ऑफ स्नो को गिराया, मुझ पर किस पर? पोएट पर. पोएट इज under the hemlock tree. And जैसे ही क्रो ने उस पोएट पर जो हेमलॉक ट्री के नीचे था उस पर डस्ट ऑफ स्नो गिराई, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Means poet is saying मेरा मूड चेंज हो गया और इससे मेरा जो दिन था वो जो मैं रिग्रेट में वेस्ट करता वो बच गया. इट मीन्स वॉट? पोएट वॉज अपसेट अर्लियर. पहले पोएट बहुत ही ज़्यादा अपसेट था, सैड था. ओके, तो वॉट ही सेइंग हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड. मतलब पहले जो वो टाइम मैं जो रिग्रेट करने में, पछताने में, उदास बैठा था उसमें जो बिता रहा था, मेरा टाइम वो बच गया. मतलब वो जो स्नो थी मुझ पर गिरी एंड आई केम आउट ऑफ दोज नेगेटिव थॉट्स. तो व्हाट हैपेंड? ही बिकेम चीयरफुल. हिज मूड चेंज्ड. लेट्स सी इट अगेन. द फर्स्ट पैरा. द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Okay, so we'll see the rhyme scheme in this. Crow, snow A, me, tree B. So the rhyme scheme becomes AB, AB.
Second para, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rude. Over here, mood, rude, they are rhyming same. Okay, and I've already told you the rude means regret में रहना. Okay, see, मूड एंड रूड जो हैं, पहले वो जो सैड मूड में था उसका मूड चेंज हो गया, फाइन. बट राइमिंग स्कीम क्या बिकम्स? हार्ट एंड पार्ट, सी सी, मूड एंड रूड, डी डी, fine. The CD, CD. And now we'll see the poetic device. Poetic device is like H and H in the first line. So, what is this? Alliteration. बच्चों, this rhyme scheme तो आपको समझ में. Alliteration is when the occurrence of same letter या sound at the beginning of कनेक्टिंग वर्ड्स या एडजेसेंट वर्ड. लाइक यहाँ पे क्या है? हैज़ एंड हार्ट दोनों एच एच से स्टार्ट हो रहे हैं. एंड इन दिस थर्ड लाइन, सेव्ड सम पार्ट, एस एस. तो यहाँ पे क्या है? एलिट्रेशन है. फाइन. ओके, नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द पोम, बट what is the message over here? Do you understand? Poet is trying to say that people consider so many things as inauspicious, कि ये अशुभ है, वो अशुभ है, but these are our way of thinking. Okay, nature gives us always positive vibes. This is our own way of thinking that हम कुछ चीज़ों को शुभ मान लेते हैं, अशुभ मान लेते हैं. Okay, but he is saying he has tried to make us understand that we see the world not as how it is. वो हमें बताना चाह रहा है कि जैसे हम सोचते हैं दुनिया वैसी नहीं है. The crow sitting and a hemlock tree together made the poet's day better. कैसे एक क्रो ने जो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा था एंड पोएट उस हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा था. फाइन. तो कैसे दोनों इनऑस्पिशियस चीज़ें, जो नेगेटिव चीज़ें कंसिडर की जाती हैं, उन्होंने पोएट के डे को बेटर बना दिया. सो डस्ट ऑफ स्नो एंड दिस क्रो एंड देन हेमलॉक ट्री, दे ऑल स्टैंड फॉर जॉय. फाइन. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस.